100 करोड़ भारतवासियों के लोकनायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों की गूंज से उनका स्वागत करें। गुजराते आदरणीय प्रधानमंत्रीश्रीના માર્ગદર્શનમાં સૌને માટે અન્ન સૌને પોષણ અંતર્ગત આજે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના દ્વારા ગરીબોને વિનામૂલ્યે અનાજ આપવાનો સેવા યજ્ઞ આરંભ્યો છે। અવસરે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને પ્રાસંગિક સંબોધન માટે યશસ્વી અને લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને વિનંતી કરીએ છીએ। માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી। સમગ્ર ભારતવાસીઓ માટે અતિ ગૌરવ અને પ્રતિષ્ઠા દુનિયામાં અપાવનાર સમગ્ર વિશ્વ અને ભારતના લોકપ્રિય નેતા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ, પ્રદેશ ભાજપા અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર. પાટીલ, આ વિસ્તારના લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી જસવંતસિંહજી ભાભોર, પુરવઠા મંત્રી માન્ય શ્રી જયેશભાઈ રાદડિયા, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ અને બહેનો, આજે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં યોજાઈ રહેલ અનાજ વિતરણના રાજ્યવ્યાપી કાર્યક્રમ એ અંત્યોદય ને ચરિતાર્થ કરવાનો એક સફળ પ્રયાસ છે। છેવાડાના માનવી અને ગરીબ વ્યક્તિના જીવનમાં સંવેદનશીલ સ્પર્શ છે। છેલ્લી હરોળમાં ઉભેલ છેલ્લી વ્યક્તિને પણ પોતાના જીવનમાં સરકારનો અનુભવ થાય તેવો એક નમ્ર પ્રયાસ છે। આ એટલા માટે શક્ય છે કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર પાસે છેવાડાના માનવીના જીવનને બહેતર બનાવવા માટેનું એક સ્પષ્ટ વિઝન છે, દ્રઢ ઈચ્છા શક્તિ છે અને ગરીબ વંચિતો માટેની સંવેદનશીલતા પણ છે। આપણે નસીબદાર છીએ કે ગુજરાતને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સ્વરૂપમાં સમગ્ર દેશને હવે એક દ્રષ્ટિવંત શાસન કરતા મળ્યા છે। રાજ્યની વિકાસ યાત્રા અને દેશની વિકાસ યાત્રા એમના નેતૃત્વમાં ખૂબ આગળ વધી અને હવે ગુજરાત પણ દેશ માટે એક રોલ મોડેલ બન્યું છે। માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દેશના ગરીબો વંચિતોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ આવાસો આપ્યા, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત શૌચાલયો આપ્યા, જનધન દ્વારા એકાઉન્ટો આપ્યા, બેંકમાં સ્થાન આપ્યું, ઉજ્જવલા યોજના દ્વારા ઘરે ઘરે ધુમાડો દૂર કરીને ગેસના કનેક્શન આપ્યા, સૌભાગ્ય યોજનાથી ઘરે ઘરે અંધારા दूर થયા અને વીજળી આપી। આયુષ્યમાન ભારતના આયોજન દ્વારા એમના માધ્યમથી દેશના કરોડો લોકોને આરોગ્યનું સુરક્ષા કવચ આપ્યું અને હવે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના દ્વારા એના માધ્યમથી વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણનો કાર્યક્રમ પણ એમને આજથી શરૂ કર્યો છે। આજે અનાજ વિતરણ કાર્યક્રમમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે ગુજરાતની 17,000 કરતા વધુ સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી 71 લાખ અંત્યોદય ગરીબ પરિવારોના 3.5 કરોડ લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ આપીને સૌને અન્ન સૌને પોષણ ના સંકલ્પને સાકાર કરી રહ્યા છીએ। નવેમ્બર 2021 સુધી આ અનાજ વિનામૂલ્યે સરકાર આપવાની છે। આ માટે હું પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો ગુજરાતની 6.5 કરોડની જનતા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશનું શાસન સંભાળ્યા ત્યારે પોતાના પ્રથમ પ્રવચનમાં કીધું હતું
કે મારી સરકાર ગરીબોની સરકાર છે, પીડિતોની સરકાર છે, શોષિતોની, મજદૂરોની, ગામડાઓની સરકાર છે અને એના લોક ઉપયોગી કામ એને પ્રથમ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસની સરકારોએ ગરીબોની ખૂબ ઉપેક્ષા કરી હતી. કોંગ્રેસે વોટ બેંક માટે ગરીબી હટાવના માત્ર સૂત્રો આપ્યા હતા. સૂત્રો આપવા સહેલા છે, પણ ગરીબી હટાવવા માટે સમર્પિત થઈને રાત દિવસ કામ કરવું એ અલગ બાબત છે અને એ કામ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ કરી રહ્યા છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં અન્નને બ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે અન્નમાં બ્રહ્મનો વાસ છે, દેવનો વાસ છે. અન્ન જનતાને વિનામૂલ્યે આપીને નરેન્દ્રભાઈએ કરોડો ગરીબોના પોષણની ચિંતા કરી છે. ગરીબોના બેલી તરીકે આદરણીય વડાપ્રધાન ને દેશ આજે યાદ કરી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે 2,84,000 કરોડ રૂપિયા 2,84,000 કરોડ રૂપિયાની સબસિડી આ અનાજ માટે આપી છે. આના કારણે દેશના 80 કરોડ લોકોને 7 મહિના અનાજ મળવાનું છે. કોરોના કાળમાં જે રીતે ગરીબોને નિઃશુલ્ક અનાજ પહોંચાડ્યું છે અને એવી કપરી પરિસ્થિતિમાં લોકો, ટીકાકારો કહેતા હતા કે ભૂખમરાથી પણ લોકો મરશે, એને બદલે આદરણીય વડાપ્રધાનની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને એમના આયોજનથી ભારતમાં કોઈ ભૂખ્યું ને કોઈ વ્યક્તિને સુવા દીધું નથી અને પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જન સામાન્ય માટે ચિંતા અને સમર્પણ દેખાડ્યા છે. અગાઉ કોઈ પણ પક્ષની સરકારોએ ગરીબો માટે આવા વ્યાપક કાર્યક્રમો યોજ્યા નહોતા, આજે થઈ રહ્યા છે. આજ સુધી વન નેશન વન રાશન કોઈ વિચાર કોઈને આવ્યો નહોતો, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગરીબ શ્રમિકો માટે દેશમાં ગમે ત્યાં કામ કરતા હોય પોતાના રેશન કાર્ડથી ગમે તે વિસ્તારમાં ગમે તે દુકાનમાંથી એને રેશન મળી રહે આવું ક્રાંતિકારી આયોજન આદરણીય વડાપ્રધાને કરીને શ્રમિકો, મજૂરો, ગરીબો માટે બહુ મોટી યોજના બનાવી. પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ સ્વયં ગરીબી જોઈ છે, અનુભવી છે, એટલે જ એમને ગરીબો પ્રત્યે અપાર સંવેદના છે. એ આજના કાર્યક્રમની ભલી ભાંતિ દેખાય છે. અનાજ વિતરણમાં આજે લોકોને 72 લાખ લોકોને ગુજરાતમાં આજથી અનાજ વિતરણ શરૂ થવાનું છે. ત્યારે આદરણીય વડાપ્રધાન આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરાવ્યો, એમનું હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું, ખૂબ ખૂબ આભાર પણ માનું છું અને નવા ભારતના નિર્માણ માટે વડાપ્રધાન અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ એક ગુજરાત અભિયાન મિશન મોડમાં લઈ અને જન સેવા માટે કટિબદ્ધ છે એની ખાતરી પણ આપું છું. ફરી વખત આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અને એમનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. भारत माता की जय. आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपनो। कोविड-19 की महामारी के नियंत्रण हेतु लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान देश का एक भी अंत्योदय या गरीब या समाज के अंतिम छोर पर रहा व्यक्ति भूखा न रहे, उसे निःशुल्क अन्न या राशन मुहैया करवाने हेतु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है। आइए इस योजना के लाभ एवं विशेषता जाने इस फिल्म के माध्यम से। अन्नम वै ब्रह्म। अपनी संस्कृति में अन्नનું સ્થાન પૂજનીય છે, ત્યારે દેશના ગરીબો માટે અન્ન, જીવન અને સન્માનના ત્રિવેણી સંગમ સમી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત કપરા કોરોના કાળમાં પણ કોઈ ભૂખ્યું ન રહે તેવા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સંવેદનશીલ અભિગમ સાથે સમગ્ર દેશમાં આરંભાયું વિના મૂલ્યે અન્ન વિતરણનું મહા અભિયાન। लॉकडाउन दरमियान पण अंदाजे 80 करोड़ जनता ने विना मूल्ये मळतो रह्यो अन्न पुरवठो। गुजरात में पण संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीना मार्गदर्शन हेठळ लॉकडाउनना बीजा दिवसे ज निर्णय लई तमाम 68.80 लाख NFSA कार्ड धारकोनी
3.36 કરોડ જનસંખ્યાને વિતરિત કરાયું વિના મૂલ્યે અનાજ. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાના પ્રથમ તબક્કાના અમલીકરણ બાદ કોરોનાની અસરને ધ્યાનમાં રાખતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દ્વારા આ યોજનાને જુલાઈથી નવેમ્બર 2020 વધુ 5 માસ માટે લંબાવવામાં આવી. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના તબક્કા 1 અને 2 અંતર્ગત એપ્રિલથી નવેમ્બર 2020 સુધી રાજ્યના 68.80 લાખ એનએફએસએ કાર્ડ ધારકોને પ્રતિમાસ વિના મૂલ્યે અન્ન પુરવઠાના વિતરણની વ્યવસ્થા કરાઈ. કોરોનાની બીજી લહેરને ધ્યાને લેતા આ યોજનાના ત્રીજા તબક્કા અંતર્ગત મે અને જૂન માસ દરમિયાન એનએફએસએ કાર્ડ ધારકોને તેમને મળવાપાત્ર રાહત દરના રાશનના લાભ ઉપરાંત પ્રતિમાસ વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલોગ્રામ વધારાનું અનાજ વિના મૂલ્યે અપાયું. સર્વને અન્ન સર્વને પોષણના સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વર્ચ્યુઅલ પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં થઈ રહ્યો છે અનાજ વિતરણ કાર્યક્રમ. 17,000થી વધુ વાજબી ભાવની દુકાનો પર ઉપસ્થિત લાભાર્થીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરશે આપણા લોક લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. રાજ્યના તમામ એનએફએસએ કાર્ડ ધારક લાભાર્થીઓને વિના મૂલ્યે વિતરિત કરાશે અન્ન પુરવઠા સાથેની રાશન બેગ. અનાજ વિતરણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના એનએફએસએ કાર્ડ ધારક લાભાર્થીઓને 15 કિલો ક્ષમતાવાળી રાશન બેગમાં કરાશે વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલો ઘઉં અને ચોખાનું વિના મૂલ્યે વિતરણ. દર મહિને મળવાપાત્ર રાહત દરના રાશન ઉપરાંત મે થી નવેમ્બર 2021 સુધી વ્યક્તિ દીઠ 5 કિલોગ્રામ અનાજનું થઈ રહ્યું છે વિના મૂલ્યે વિતરણ. જન જનને અન્ન. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના. સર્વને અન્ન सर्वने पोषण. धन्यवाद मोदी जी. भाइयों बहनों, किसी भी योजना की सही और परिणामलक्षी अमलवारी में एक विशेषता माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जुड़ी है और वह है योजना के लाभार्थी से सीधा संवाद कर उनके प्रतिभाव जानना और योजना से लाभ की जानकारी ग्राउंड रियलिटी प्राप्त करना. आज माननीय प्रधानमंत्री जी अन्न वितरण योजना के कुछ लाभार्थियों से सीधा संवाद कर उनसे बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे. आइए सबसे पहले चलते हैं वडनगर, जहां से जुड़े हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी नरसिंह भाई प्रजापति. प्रधानमंत्री जी उनसे संवाद कर उनसे बातचीत करेंगे. नरसिंह भाई नमस्ते. नमस्कार सर. तो वडनगर में क्या रहो છો नरसिंह भाई? साहब गोचीओड़. તમારો અવાજ નહીં આવ્યો. સાહેબ ગાંચીઓળો. અચ્છા અચ્છા. તો નરસિંહભાઈ શું કામ કરો છો આજકાલ? છૂટક મજૂરી. એમ તમને પીએમ ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો જે લાભ મળ્યો છે એનાથી સંતોષ છે? શું શું મળે છે અને શું છે જરા વર્ણન કરશો? હા સાહેબ, એનાથી સંપૂર્ણ સંતોષ છે અમને. અમને વ્યક્તિ દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં મળે છે અને 1.5 કિલો ચોખા મળે છે. ઘરમાં પૂરતું થઈ રહે છે બધું કે વધારે પડે છે? ના સાહેબ, થઈ રહે કમ્પ્લીટ. તો હવે અનાજનો ખર્ચો બચ્યો તે પૈસા શું કરો છો? સાહેબ અનાજનો જે ખર્ચો બચે એમાં બીજો જે ખર્ચો થતો હોય ને. પૈસા તો બચ્યા ને, પહેલા તો અનાજ ખરીદતા હતા. સાહેબ પૈસા બચ્યા, પરંતુ કંઈક દવાનો હોય, કંઈક બીજો આર્થિક હોય, બીજો આર્થિક કંઈ લાવવાનું હોય. તમને સરકારની બીજી કોઈ યોજનાઓના પણ લાભ મળ્યા છે કે? હા સાહેબ. શું મળ્યું છે? ગરીબ કલ્યાણ યોજનામાં મને એક વખત સુથારી કામના સાધન મળેલા. એટલે સુથારી કામ કરો છો? ના સાહેબ, હા, હું દૂધનો ધંધો કરું છું અને છૂટક મજૂરી કરું, જેવી કે લાઇટ વાળા પાસે હેલ્પરનું કામ કરું છું હું, અને બીજી કોઈ જો મજૂરી મળી રહે તો કરી લેવું છું. તમારા પરિવારમાં કોણ છે? દીકરા દીકરી? એક દીકરો છે અને એક દીકરી છે. એ લોકો ભણે છે? ભણાવો છો કે નથી ભણાવતા? હા સાહેબ, ભણાવું છું ને. हाँ. नरसिंह भाई, सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि सामान्य मानवी को
हर स्तर पर हर संभव मदद पहुंचाई जाए। सिर्फ योजनाएं ही बनाई जाए इतना ही नहीं, बल्कि वो लाभार्थी तक पहुंचे भी। मुझे संतोष है कि आपको और आपके परिवार की राशन की चिंता दूर हुई है। आप अपने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएं और उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दें। अब तो वडनगर में नવું रेलवे स्टेशन પણ બની ગયું છે, જોઈ આયા કે નહીં? જી હા સાહેબ, મુલાકાત લીધી ને. હા, કેવું બન્યું છે? રેલવે સ્ટેશન ગયા, પછી ત્યાંથી ગાડીમાં બેસીને મારા વિસનગર ગયા. ગામવાળા ખુશ છે વડનગર સ્ટેશન જોઈને? અરે સાહેબ, કેટલી ખુશી છે કઈ ના પૂછો વાત. એમ? બયાન કરવી મુશ્કેલ છે. ચાલો, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ બધાને. ધન્યવાદ અને સાહેબ. વડનગર વાસીઓને નમસ્કાર. મારા પ્રણામ. दिव्यांग लाभार्थी वर्षाबेन भूरिया। माननीय प्रधानमंत्री जी अब दाहोद की इस लाभार्थी से संवाद करेंगे और उनसे योजना के बारे में जानेंगे। વર્ષાબેન નમસ્તે. નમસ્તે સાહેબ. વર્ષાબેન, કયા ગામમાં રહો છો? દાહોદમાં કે બીજે ક્યાંય? જાળતમાં રોશે સાહેબ. અને મૂળ ગામ ક્યાં આપણું વર્ષાબેન? મૂળ ગામ ક્યાં? ભુરિયા વર્ષાબેન મનોજભાઈ, ગામ જાલત, નાકા ફળિયામાં રહું જાલત. છું. અચ્છા. તો આ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના આ મેળવવામાં કોઈ વાર કઈ તકલીફ તો નથી પડતી કે મળી જાય છે કે શું થાય છે? ના, નથી તકલીફ પડતી. દાણા ઠેકા ઉપરથી મળી જાય છે સાહેબ. દર મહિને જે સમય હોય એ સમય મળે છે કે મોડું પડે છે? હા બે ચાર હા, ફેર મળી જાય છે સાહેબ. બે ચાર વખત આટા મારવા પડે, ફેરા ખાવા પડે એવું નથી ના. થતું ને? ના ના, નથી થતું એવું. દિવ્યાંગ પરિવારો માટે, દિવ્યાંગો કે માટે ગુજરાત સરકાર પણ અનેક પ્રકારની યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. આ ગુજરાત સરકારની જે યોજનાઓ છે એનો લાભ તમને કઈ મળે છે વર્ષાબેન? મળે છે સાહેબ. વિધવા સહાય. વિધવા સહાય મળે છે. અને હા, 1250 દિવ્યાંગ તરીકેનું રૂપિયા. કઈ મળે છે બીજો લાભ આપને? બીજો નથી મળતો. અચ્છા, તો હું ત્યાં અધિકારીઓને કહીશ કે દિવ્યાંગજનો માટેનો કોઈ લાભ હોય અને તમારા પરિવારમાં દિવ્યાંગજનને એનો લાભ મળે એના માટે જરૂર સરકારી અધિકારીઓ તમારો સંપર્ક કરે એ હું જરૂર એમને કહીશ આજે. સારું. વર્ષાબેન, તમે તમારા જીવનમાં આટલી બધી મુશ્કેલીઓ આવી પણ તમે જરાય હતાશ ના થયા, નિરાશ ના થયા અને બાળકોને પણ મોટા કરી રહ્યા છો અને ખેત મજદૂરીનું પણ કામમાં પણ જૂટ્યા છો. સંતાનોને ભણાવો છો ખરા? સારું સાહેબ. એક જ છોકરી છે, ભણાઈ રહી છે. एम जो कोरोना काल में भी सरकार ने आप जैसे साथियों को ध्यान में रखते हुए कृषि से जुड़े काम को हर बंदिश से दूर रखा। खेत मजदूरों के लिए 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये की पेंशन भी आज लागू है और लाखों साथी इससे जुड़ चुके हैं। तो वर्षाबेन, आ बधा चीजों लाभ लेजो। मारा तरफथी तमने खूब शुभकामनाओं અને દાહોદવાસીઓને પણ મારા નમસ્કાર. હવે તો વર્ષો થઈ ગયા, ઘણા વર્ષો પહેલા આવતો દાહોદ, હવે દાહોદ બહુ આવવાનું થતું નથી. ખૂબ ખૂબ આભારથી સાહેબ. આવજો. હા. राजकोट शहर से जुड़ी है गंगा स्वरूपा लाभार्थी नैनाबेन जोशी। माननीय प्रधानमंत्री जी नैनाबेन से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। નૈનાબેન નમસ્તે. નમસ્તે સર. નૈનાબેન, શું કરો છો આપ? હું સરકારી સ્કૂલમાં સફાઈ કામમાં છું સર. અચ્છા અચ્છા. આ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના એનાથી શું લાભ થઈ રહ્યો છે પરિવારમાં? ઘણો લાભ મળી ગયેલો છે. હા, હા હા. અમારે છોકરા ખાઈને પેટ ભરીને ખાય છે, પેટ ઠરે છે અમારું સાહેબ. બહુ સરસ તમે કર્યું છે. બધી રીતે સારું અમને છે સાહેબ. નૈનાબેન, આ યોજના શરૂ થઈ એનો લાભ લેવા માટે
તમને કઈ આમ વખો પડ્યા, તકલીફ પડી? સીધે સીધું મળ્યું નહીં તો સાહેબ. વચ્ચે કઈ આમ કોઈ વચેટિયા નહીં. બધું કઈ આડું તેડું કર્યું એવું તો કઈ થયું નથી ને? નહીં, કાંઈ નથી. આ કોરોના હતો ત્યાં સુધી અમને બહુ તકલીફ પડી હતી. એમના મારા ઘરના ગુજરી ગયા તો તમે વિચારતા હતા કે અમે અનાજ ક્યાંથી કાઢીએ, તો તમે અમને આટલા પેટમાં પૂરું પાડ્યું તો અમે એટલે રાજી થઈ ગયા. છોકરા પેટ ઠરીને ખાય છે સાહેબ, તો અમને કોઈ જાતની વાંધો આવે એમ નથી. તમે અમને આટલો ટેકો દીધો અને અમને એટલો ટેકો દેતા રહેજો સાહેબ. તો તમને સંતોષ છે? મને બહુ જ સંતોષ છે. અમારા ઘરના બધા રાજી થઈ ગયા છે કે બહુ સરસ મજા આવે છે જમવાની, સરસ સ્વાદવાળું જમવાનું આવે છે એમ. બા તમારા જેવી બધી માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ મળે તો અમે વધારે સારું કામ કરીએ, સારું પણ કરીએ અને સાચું પણ કરીએ. સાચું સાહેબ. અમારો આ જ પ્રયત્ન છે કે તમને બધાને આ યોજનાઓનો કોઈ પણ ભેદભાવ વગર લાભ મળે અને કોઈ ઓળખાણની જરૂર નહીં. નિયમથી, કાયદાથી બધાને બધો લાભ મળે, એ જ આપણો સરકારનો પ્રયાસ છે. અને મારો તો અધિકારીઓને પણ આગ્રહ હોય છે કે ભાઈ સામે ચાલીને ગરીબને તકલીફ હોય તો સામે ચાલીને જઈને એમની મુશ્કેલી દૂર કરવી જોઈએ. અને ગુજરાતમાં તો આપણા અધિકારીઓને પણ હવે આની આદત પડી ગઈ છે, એટલે સામે ચાલીને ચિંતા કરતા હોય છે. ચાલો નયનાબેન, તબિયત સાચવજો અને બાળકોને ભણાવજો. અને ખૂબ બધા રાજકોટવાસીઓનો ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરું છું, કારણ કે હું પહેલી વાર MLA બન્યો તો તમે બધા રાજકોટના લોકોએ મને MLA બનાવ્યો હતો. નમસ્તે. એટલે રાજકોટનું તો ઋણ કાયમ માટે મારા માથે છે. ચાલો, ધન્યવાદ બધાને. आदिवासी क्षेत्र तापी के गड़त से जुड़े हैं चौधरी जितेंद्र भाई नरसिंह भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी जितेंद्र भाई से संवाद करेंगे। जितेंद्र भाई नमस्ते। नमस्ते साहेब। जितेंद्र भाई हाँ जी કેમ નમસ્તે। છો? બસ મજામાં સાહેબ। ક્યાંથી બોલો છો અત્યારે, ક્યાં છો? હું ગામ ગળદ, ડોલવણ તાલુકો અને જિલ્લો તાપીથી બોલું સાહેબ। એટલે તાપી જિલ્લામાં કાર્યક્રમ ચાલે છે આજે? હા, તાપી જિલ્લામાં। હા, તમારા તાપી જિલ્લામાં તો કલેક્ટર કચેરી બી બહુ શાનદાર છે એકદમ જબરજસ્ત સાહેબ। હા, જીતેન્દ્રજી હા બોલો સાહેબ। મને એમ કહેવામાં આવ્યું કે તમને આ યોજનાની ખબર જ નહોતી અને તમે કઈ એનો લાભ જ નહોતા લેતા, એવું કેમ થયું? ના ના સાહેબ, લાભ મળે છે ને। હવે મળે છે લાભ? હા મળે મળે। પહેલેથી મળે છે કે વચ્ચે ભાઈ પહેલે બહુ મોડેથી ખબર પડી? શું થયું હતું? ના ના મળે છે સાહેબ। હા, હમ। અને તમે શું ખેતી કરો છો? આ ખેતી અને પશુપાલનનો ધંધો કરું। એમ, પશુપાલનમાં કેટલા પશુ છે આપણે ત્યાં? મારે 3 ભેંસો છે અને 1 ગાય છે। અચ્છા, અને દૂધ ક્યાં ભરો છો? દૂધ ડેરીમાં। ડેરીમાં? ગામમાં દૂધ ડેરી છે। હા। અત્યારે શું ભાવ મળે છે દૂધનો ગુજરાતમાં? એ અમારા ભેંસના દૂધનો ભાવ 50 થી ઉપરનો છે સાહેબ। હા, અને ગાયનો? ગાયનો 30 થી ઉપર મળે છે। અચ્છા, ફેટ પ્રમાણે, એટલે એ તો દર મહિને અલગ અલગ હોય સાહેબ। અને ખેતીમાં શું કરો છો? હું ડાંગર વાવ્યું છે હમણાં, હા, અને તુવેર બનાવું, અને એના પછી ડાંગર કાઢીને છે ને આપણે ભીંડા પણ બનાવું છું સાહેબ। એમ? ઓહો। હા। હમ। જીતેન્દ્રજી, આપણે PM કિસાન યોજનાના જે 2,000 રૂપિયા આપણે મોકલીએ છીએ એ રકમ મળી જાય છે? એ સાહેબ અમારા ટાઈમસર અને અમારા ખાતામાં સીધા જમા થઈ જાય છે। એટલા જ નહીં, પણ અમારો નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન પણ અમને મળે છે સાહેબ। અરે વાહ। અને હા, માતાઓને વિધવા પેન્શન પણ અમારા ટાઈમસર પોતપોતાના ખાતામાં જમા થઈ જાય છે સાહેબ। પણ જીતેન્દ્રભાઈ, આ તમારા હા। ગામના બાકી ખેડૂતોને પણ 2,000 રૂપિયા એમના ખાતામાં જમા થઈ જાય છે બરાબર? આ બધાના થઈ જાય સાહેબ। હા, વચમાં કોઈ વચ્ચે દખલ નથી કરતું ને? કોઈ કટકી કંપની નથી ના, ના, આવતી ના, વચમાં? ના, કોઈ કમ્પ્લેન નહીં। બિલકુલ ઈમાનદારીથી પહોંચી જાય છે? આ પહોંચી જાય। કારણ કે આપણા દેશના એક પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે તો ગામડામાં પહોંચતા પહોંચતા 15 પૈસા થઈ જાય છે। હા, એવું આપણે તો કહેતા હતા, રૂપિયો પણ દિલ્હીથી નીકળે તો રૂપિયો આખો મળે છે કે? હા, મળી જાય છે।
₹2000 મોકલો, તમારા જે- ₹2000 પૂરા મળે છે, કઈ ઘસારો પડે છે? આ પૂરેપૂરા તમારા જેવા પૂરેપૂરા. બાહોશ, નીડર, હોશિયાર અને દેશનું આવું જબરજસ્ત નેતૃત્વ સંભાળવા વાળા કોઈ નેતા હોય તો શું બીજા એમાં દખલગીરી કરી શકે સાહેબ? તમારા બધા આદિવાસી ભાઈઓના આશીર્વાદ છે. હા, અમારા બધા આદિવાસી ભાઈઓ તમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપે છે અને બીજી વખત પણ આપણી સરકાર બને એવા અમારા ગરીબ આદિવાસીઓ તરફથી આપને આશીર્વાદ સૌ આપે છે. આદિવાસી સમાજના બધા ભાઈઓને ઉમરગામથી અંબાજી સુધી બધાને મારા प्रणाम. देखिए जितेंद्र भाई, किसानों की आय बढ़ाना आज हाँ। सरकार की प्राथमिकता है. विशेष रूप से छोटे किसानों को आज हर संभव सहायता दी जा रही है. पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर एफपीओस के माध्यम से छोटे किसानों को संगठित करने का काम, ये बहुत काम आ रहा है. यही नहीं, आज अगर गुजरात के छोटे किसानों के फल सब्जी देश के दूसरे बाजारों तक सुरक्षित और तेजी से पहुंच पा रही है, तो इसमें किसान रेल का भी बहुत बड़ा योगदान है. तो आप लोग इसका फायदा उठाइए. અને જીતેન્દ્રભાઈ, તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ મારી. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. ગાંધીનગરના જાસપુરમાં ઉપસ્થિત છે દિવ્યાંગ લાભાર્થી દિલીપભાઈ સુવડિયા. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દિલીપભાઈ સાથે સંવાદ કરશે. દિલીપભાઈ નમસ્તે. નમસ્કાર સાહેબ. દિલીપભાઈ, કહો જરા, તમારા વિશે સાંભળવું છે મારે. મારું ગામ સુવાડિયા દિલીપ કુમાર અમૃતલાલ, જાસપુર ગામ ગાંધીનગર જિલ્લો. શું કરો છો? સલૂનનું કામ, એમ? બાણંદ કામ. ત્યાં ગામમાં જ છે સલૂન કે ગાંધીનગર બનાવ્યું છે? ના ના, ગામમાં જ સાહેબ, ગામમાં જ છે. ગામડામાં. તો તમે દિવ્યાંગ છો? જીવા અપંગ છું લે 60%. હા, 60%. શું એટલે બચપણથી છે કે પછી કઈ એક્સિડન્ટ થયો હતો? પોલિયો પોલિયો થયો હતો. લખવાથી. કોરોના વખતે આપણા ગામમાં તમે બધા તો સલામત રહ્યા છો કે નહીં? હા, સરસ સરસ. હે? હા, સલામત રહ્યા. હા. દિલીપભાઈ, તમારું તો કામ એવું છે કે કોઈને પણ જરા આમ ઠાઠવાટ કરવો તમારે ત્યાં જવું પડે. હા, બરોબર સાહેબ. હા, પરંતુ ગયા કોરોનાના કારણે લોકો આવવાની હિંમત જ નહીં કરતા હોય. કોરોના કાળમાંથી સાહેબ 2 વર્ષથી તો તકલીફ જ જાય. હા, પણ હવે બરાબર ચાલે છે. અનાજ મળ્યું એના કારણે મદદ મળી છે. અનાજ બરાબર પૂરું મળે સાહેબ, કમ્પ્લીટ. અને તમારું તો કામ એવું છે કે તમે દૂરથી કરી જ ના શકો, તમારે એની પાસે જવું જ પડે. હા, એનાથી લોકો ભયભીત હાલથી ચાલુ જ છે. લોકો હા. થોડા ગભરાય. પણ તમે બરાબર માસ્ક વગેરે પહેરીને બધું કરો છો ને સેવા? માસ્ક ને બધું સેનેટાઈઝ બધું કમ્પ્લીટ છે. વાહ વાહ વાહ. હા. હા, નમસ્કાર. જે અન્ન યોજના જે છે એ મેળવવામાં તમને કોઈ તકલીફ પડી કે સરળતાથી બધું મળી રહ્યું છે? ના ના, સરસ સાહેબ, બધું કમ્પ્લીટ જ મળી રહે છે. કોઈ તકલીફ નથી પડતી? ના, કોઈ જ નહીં હો. બાળકો શું કરે છે? બાળકો એક અમારું સલૂન નું કામ કરે ને એક હજુ ભણે છે. ભણે છે? તો મોટા છોકરાને ભણાવ્યો નહીં તમે? ભણે છે સાહેબ. હું વિકલાંગ છું એટલે બીજું મારે જોવે ને થોડું સહકાર. હા, તમને મદદમાં જોઈએ કેમ? हाँ। હમ. चलो दिलीप भाई, 100 वर्ष के इस सबसे बड़ी विपत्ति ने सभी को प्रभावित किया है. 100 साल में कभी ऐसी आपदा नहीं आई. हमारे कामकाज के तौर तरीकों को भी बहुत प्रभावित किया है. ये जो वायरस है उसने नए नए तौर तरीके अपनाए, बहुरूपीय जैसा है. आप एक करो तो वो दूसरा रंग करता है और सबको अनेक मुसीबतों में डाला हुआ है. हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना हर काम, हर सुरक्षा के हर कायदे का ध्यान में रखते हुए, हर चीज का पालन करते हुए करना चाहिए, ताकि हम भी बच पाएं और भी बच पाएं. मेरी आप सबको, गांधीनगर वासियों को, दिलीप भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. ધન્યવાદ સાહેબ. હા, નમસ્કાર. आज देश के अंत्योदय, गरीब, पिछड़े वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र, किसान, महिला शक्ति, हर तबक्के का सशक्तिकरण हुआ है.
जन जन को आरोग्य सुरक्षा कवच प्रदान करती विश्व की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जन आरोग्य सुरक्षा योजना हो या गरीबों के घर में मुफ्त राशन पहुंचाने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आज देश का हर एक व्यक्ति गरीब सामान्य जन लाभान्वित है। आत्मनिर्भर भारत का यह ध्येय साकार हुआ है देश के जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दृष्टिवंत नेतृत्व में। आइए जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अनुरोध करते हैं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, PM गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी लाभार्थी भाई और बहनों, बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। ये योजना आज से प्रारंभ नहीं हो रही है, योजना तो पिछले 1 साल से करीब करीब चल रही है, ताकि इस देश का कोई गरीब भूखा न सो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ है। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। साथियों, आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भूखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना, और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया। आज परिणाम हमारे सामने हैं। भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी विपत्ति
सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानव जात पर आई है। आजीविका पर संकट आया, कोरोना लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने अपने नागरिकों को भूखा नहीं सोने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमण के साथ साथ भूखमरी का भी भीषण संकट आ गया है। लेकिन भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस योजना से पहले की तुलना में राशन कार्ड धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरीब को पेट भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। गुजरात में भी लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन का लाभ आज मिल रहा है। मैं गुजरात सरकार की इस बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा कि उसने देश के दूसरे हिस्सों से अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को भी प्राथमिकता दी। कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए लाखों श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके पास या तो राशन कार्ड था ही नहीं या फिर उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ गुजरात के लाखों श्रमिक साथियों को हो रहा है। भाइयों और बहनों, एक दौर था जब देश में विकास की बात केवल बड़े शहरों तक ही सीमित होती थी। वहां भी विकास का मतलब बस इतना ही होता था कि खास खास इलाकों में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाएं, सड़कें बन जाएं, मेट्रो बन जाए, यानी गांवों कस्बों से दूर और हमारे घर के बाहर जो काम होता था, जिसका सामान्य मानवी से लेना देना नहीं था, उसे विकास माना गया। बीते वर्षों में देश ने इस सोच को बदला है। आज देश दोनों दिशाओं में काम करना, 2 पटरी पर चलना चाहता है। देश को नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए नए मानदंड भी स्थापित कर रहे हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
जब 2 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अब सर्दी, गर्मी, बारिश के डर से मुक्त होकर जी पाएगा। इतना ही नहीं, जब खुद का घर होता है ना तो आत्मसम्मान से उसका जीवन भर जाता है, नए संकल्पों से जुड़ जाता है और उस संकल्पों को साकार करने के लिए गरीब परिवार समेत जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत करता है। जब 10 करोड़ परिवारों को शौच के लिए घर से बाहर जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलती है तो इसका मतलब होता है कि उसका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। वो पहले सोचता था कि सुखी परिवारों के घर में ही टॉयलेट होता है, शौचालय उन्हीं के घर में होता है, गरीब को तो बेचारे को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है। लेकिन जब गरीब को शौचालय मिलता है तो वो अमीर की बराबरी में अपने आप को देखता है, एक नया विश्वास पैदा होता है। इसी तरह जब देश का गरीब जनधन खाते के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ता है, मोबाइल बैंकिंग गरीब के भी हाथ में होती है तो उसे ताकत मिलती है, उसे नए अवसर मिलते हैं। हमारे यहां कहा जाता है सामर्थ्य मूलम सुखमेव लोके, अर्थात हमारे सामर्थ्य का आधार हमारे जीवन का सुख ही होता है। जैसे हम सुख के पीछे भागकर सुख हासिल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें निर्धारित काम करने होते हैं, कुछ हासिल करना होता है। वैसे ही सशक्तिकरण भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा और गरिमा बढ़ने से होता है। जब करोड़ों गरीबों को आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज मिलता है तो स्वास्थ्य से उनका सशक्तिकरण होता है। जब कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाती है तो इन वर्गों का शिक्षा से सशक्तिकरण होता है। जब सड़कें शहरों से गांवों को भी जोड़ती हैं, जब गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलता है तो ये सुविधाएं उनका सशक्तिकरण करती हैं। जब एक व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाएं मिलती हैं तो अपनी उन्नति के बारे में, देश की प्रगति के बारे में सोचता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए आज देश में मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है। भारत में ऐसी अनेकों योजनाएं गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन का मार्ग दे रही है, सम्मान से सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। भाइयों और बहनों, जब सामान्य मानवी के सपनों को अवसर मिलते हैं, व्यवस्थाएं जब घर तक खुद पहुंचने लगती हैं तो जीवन कैसे बदलता है ये गुजरात बखूबी समझता है। कभी गुजरात के एक बड़े हिस्से में लोगों को, माताओं बहनों को पानी जैसी जरूरत के लिए कई कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हमारी सभी माताएं बहनें साक्षी हैं। ये राजकोट में तो पानी के लिए ट्रेन भेजनी पड़ती थी। राजकोट में तो पानी लेना है तो घर के बाहर गड्ढा खोद करके नीचे पाइप में से पानी एक एक कटोरी लेकर के बाल्टी भरनी पड़ती थी। लेकिन आज सरदार सरोवर बांध से, सौनी योजना से, नहरों के नेटवर्क से उस कच्छ में भी मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है जहां कोई सोचता भी नहीं था। और हमारे यहां तो कहा जाता था कि मां नर्मदा का स्मरण मात्र से पुण्य मिलता है। आज तो स्वयं मां नर्मदा गुजरात के गांव गांव जाती है, स्वयं मां नर्मदा घर घर जाती है, स्वयं मां नर्मदा
आपके द्वार आकर के आपको आशीर्वाद देती है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज गुजरात 100% नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य में अब ज्यादा दूर नहीं है। यही गति आम जन के जीवन में, यही बदलाव अब धीरे धीरे पूरा देश महसूस कर रहा है। आजादी के दशकों बाद भी देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवार पानी के नल की सुविधा से जुड़े हुए थे, जिनको नल से जल मिलता था। लेकिन आज जल जीवन अभियान के तहत देश भर में सिर्फ 2 साल के भीतर 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप के पानी से जोड़ा जा चुका है। और इसीलिए मेरी माताएं बहनें मुझे भरपूर आशीर्वाद देती रहती हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार के लाभ भी गुजरात लगातार देख रहा है। आज सरदार सरोवर बांध से विकास की नई धारा ही नहीं बह रही, बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में विश्व के सबसे बड़े आकर्षण में से एक आज गुजरात में है। कच्छ में स्थापित हो रहा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात को पूरे विश्व के रिन्यूएबल एनर्जी मैप से स्थापित करने वाला है। गुजरात में रेल और हवाई कनेक्टिविटी के आधुनिक और भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार तेजी से हो रहा है। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में भी गुजरात में प्रशंसनीय काम हो रहा है। गुजरात में तैयार हुए बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 100 साल की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, गुजरात सहित पूरे देश में ऐसे अनेक काम हैं जिनके कारण आज हर देशवासी का, हर क्षेत्र का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये आत्मविश्वास ही है जो हर चुनौती से पार पाने का, हर सपने को पाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। अभी ताजा उदाहरण है ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन। इस बार ओलंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। याद रहे, ये 100 साल की सबसे बड़ी आपदा से जूझते हुए हमने किया है। कई तो ऐसे खेल हैं जिनमें हमने पहली बार क्वालिफाई किया है। सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ी हर खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ओलंपिक में नए भारत का बुलंद आत्मविश्वास हर गेम में दिख रहा है। ओलंपिक्स में उतरे हमारे खिलाड़ी अपने से बेहतर रैंकिंग के खिलाड़ियों को, उनकी टीमों को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा आज सर्वोच्च स्तर पर है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब सही टैलेंट की पहचान होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ये आत्मविश्वास तब आता है जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। ये नया आत्मविश्वास न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। ये आत्मविश्वास आज देश के कोने कोने में, हर छोटे छोटे बड़े बड़े गांव, कस्बे, गरीब मध्यम वर्ग के युवा, भारत के हर कोने में ये विश्वास आ रहा है। साथियों, इसी आत्मविश्वास को हमें कोरोना से लड़ाई में और अपने टीकाकरण अभियान में भी जारी रखना है। वैश्विक महामारी के इस माहौल में हमें अपनी सतर्कता लगातार बनाए रखनी है।
देश आज 50 करोड़ टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो गुजरात भी 3.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस को उसके पड़ाव के पास पहुंच रहा है। हमें टीका भी लगवाना है, मास्क भी पहनना है और जितना संभव हो उतना भीड़ का हिस्सा बनने से बचना है। हम दुनिया में देख रहे हैं, जहां मास्क हटाए भी गए थे वहां फिर से मास्क लगाने का आग्रह किया जाने लगा है। सावधानी और सुरक्षा के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, आज जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं एक और संकल्प देशवासियों को दिलाना चाहता हूं। ये संकल्प है राष्ट्र निर्माण की नई प्रेरणा जगाने का। आजादी के 75 वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव में ये पवित्र संकल्प लेना है। इन संकल्पों में, इस अभियान में गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, दलित, वंचित सबकी बराबर हिस्सेदारी है। गुजरात आने वाले वर्षों में अपने सभी संकल्प सिद्ध करे, विश्व में अपनी गौरवमयी पहचान को और मजबूत करे। इसी कामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर अन्न योजना के सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्न योजना के सभी आभार प्रधानमंत्री जी, हम आपके ऋणी रहेंगे। औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते अन्नम भूतानां श्रेष्ठम अन्न ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नम न निंद्यात्। तैत्तरीय उपनिषद का यह श्लोक कह रहा है कि अन्न स्वयं ब्रह्म है। अन्न देव से दरिद्र नारायण की भूख संतोषने का यह प्रयास है। इस अवसर को यहाँ विराम देते हैं। जिला स्तर पर और यहाँ अन्न वितरण एवं लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और हर घर अन्न की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए खासकर इस कोरोना महामारी के दौर में पिछले साल शुरुआत की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आज प्रधानमंत्री ने गुजरात के तमाम शहरों से इस योजना से जुड़े लाभार्थियों के साथ बात की। ये सुनिश्चित करना चाहा कि क्या लाभार्थी तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं। हमने देखा इस देश में सालों साल, दशकों तक गरीबों के लिए कल्याण योजनाएं जरूर बनती रही हैं, लेकिन क्या वो उन तक पहुंच रही हैं, उनसे संवाद किया जाए, ये पता किया जाए, इस पर उस तरह से काम नहीं हुआ था। आज प्रधानमंत्री ने एक तरह से कह सकते हैं कि पिछली कई योजनाओं में भी हमने देखा है प्रधानमंत्री लगातार लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हैं। और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इस योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए राज्य में जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी का आर्थिक दुष्प्रभाव कम करने के उद्देश्य से शुरू किया था। सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि सामान्य मानवी को हर स्तर पर हर संभव मदद पहुंचाई जाए। सिर्फ योजनाएं ही बनाई जाए इतना ही नहीं, बल्कि वो लाभार्थी तक पहुंचे भी। मुझे संतोष है कि आपको और आपके परिवार की राशन की चिंता दूर हुई है। आप अपने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाएं और उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दें। बड़े बड़े एक्सपर्ट
इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यानी इस योजना से पहले की तुलना में राशन कार्ड धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरीब को पेट भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। देश को नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए नए मानदंड भी स्थापित कर रहे हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। और जासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, करीब 80 करोड़ देशवासियों को आज इस योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा, इसमें कई योजनाओं का जिक्र करा और उन्होंने कहा गरीबों को सम्मान के साथ सशक्त किया जा रहा है, ये उनका अधिकार है। जिन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है वो योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में इसकी चिंता जरूर रही सरकारों में कि गरीब के लिए योजना बनाए, लेकिन उन योजनाओं का कितना लाभ पहुंच रहा है ये शायद उतनी बड़ी चिंता नहीं थी। कितनी तस्वीर इसने बदली है? अरे मैडम रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाओ। कुमार आलोक, अरे लाइन पे है मैं। कुमार आलोक। हाँ मैम, देखिए मेरे साथ जो प्रधानमंत्री जिन्होंने बात किया दिलीप भाई, आज जो वो अन्न योजना के जो लाभुक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात किया। आज दिलीप भाई पेशे से सैलून चलाते हैं, तो दिलीप भाई आपने क्या बात की और प्रधानमंत्री से बात करके आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, वो डायरेक्ट बात की है, अच्छा लगा है मेरे को। हाँ हाँ सारू लागे मैंने जो बात थी ये मारा रूबरू में ए बरोबर। बोलो भाई, क्या पूछा प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री को आपने क्या बताया? वो अनाज ना बताए, वो राशन कार्ड में जो मिलता है वो बताया, और कोरोना का कार्ड में वो मुफ्त मिलता है वो बताए। वो सब हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है। आपसे उन्होंने ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं और जब काम करते हैं तो सावधानी बरतते हैं कि नहीं आप कोरोना काल में? हाँ कोरोना काल में वो सावधानी तो रखनी पड़ेगी नहीं, वो कोरोना काल से ऐसा बताया। और अभी तो धंधा वो चालू नहीं है मेरा। हाँ और तो ये थे अभी बहुत ही हॉट स्पॉट बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले इनको इनसे बात करने के लिए, इनसे लाइव बात करने के लिए प्रयासरत हैं। तो आप अंतिम में आपसे यही पूछेंगे कि अब जो आपको अनाज जो मिल रहा है उस अनाज से कितना फायदा हुआ आपको, आपके पूरे परिवार को? हमारा पूरा परिवार ने वो अनाज आया एनाथी हमने सारो संतोष है बराबर। અને અમારા ઘર ખર્ચમાં જે એ હેલ્પ થઈ જઈ બરાબર। આ કોરોના કાળમાં અમારે હાલે ઓછું ચાલતું હતું, એનાથી અનાજ મળ્યું અને અમારું જીવન સારું ચાલ્યું।
तो ये थे दिलीप भाई। ठीक है दिलीप भाई, आप जाएं, आपको बहुत लोग खोज रहे हैं। तो ये थे दिलीप भाई जो जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना जो पूरे देश में लागू है, जिससे कि पूरे देश के 80 करोड़ से अधिक लोग इसका लाभ ले रहे हैं। उसके चलते एक गांव का, इस देश का एक एक व्यक्ति जो गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, जो कार्डधारक है, जो कार्डधारक को जितना अनाज पहले मिलता था उसके अलावे 5 किलो अनाज हर एक व्यक्ति के परिवार को मिल रहा है। जैसे कि अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति है तो 20 पांचों व्यक्ति को यानी 25 किलो अनाज उस परिवार को एक्स्ट्रा जा रहा है जो पहले से मिलता था। तो ये आज का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम गुजरात के कई जगहों पे आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया लाभुकों से कि क्या ये इस योजना का लाभ उन्हें, सही लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं। जो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब वहां से 100 रुपया चलता है केंद्र से तो नीचे पहुंचते पहुंचते 1 रुपया हो जाता है। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद जो सिस्टम सुधरा है, तो अगर केंद्र से 1 रुपया भी अगर जा रहा है आम जनता के पास तो वो 1 रुपया सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी गरीब कल्याण अन्न योजना है। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना है सरकार की और इसी को लेकर के आज पूरे अगर हम आम गरीबों की हम बात करें, आम लोगों की बात करें तो इस योजना का लाभ उन्होंने बखूबी उठाया है। जी कुमार, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ वडनगर से मेघना भी जुड़ गई हैं। मेघना, हमने देखा प्रधानमंत्री जब लाभार्थियों से बात कर रहे थे तो सिर्फ इस योजना तक सीमित वो नहीं थे, उन्होंने परिवार में किस तरह का बदलाव आया है, इस कोरोना काल में क्या संकट है, इन तमाम चीजों को उन लाभार्थियों से जानना चाहा। यानी कि उन्होंने ये भी पूछा उनमें से लाभार्थियों से क्या अन्य कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आप उठा रहे हैं जिसके दायरे में वो परिवार या गरीब व्यक्ति आता है। तो क्या लगता है कि इस तरह का एक तरह से डिटेल्ड अगर हम कहें कि जमीन पर कितनी योजनाएं काम कर रही हैं और किस तरह से लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, ये तमाम महकमों को भी सतर्क करेगा कि उन्हें किस तरह से इन योजनाओं पर काम करना है। जी बिल्कुल रितु, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसे कहते हैं कि एक तरीके का इंट्रोस्पेक्शन किया है कि क्या जो लाभार्थी है उसे आसान तरीके से जो योजना है उसका लाभ मिला है या क्या लाभार्थी है उसे और भी जो सरकार की, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है और वो लाभ आसानी से मिला है कि नहीं। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो 1 रुपया केंद्र से जाता है अब वो स्थिति नहीं रही है कि वो जो लाभार्थी तक पहुँचते 15 पैसा हो जाए। तो ऐसे में हमारे पास अभी कुछ लाभार्थी भी मौजूद हैं और उनमें से एक नरसिंह भाई हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है, उनसे आपकी बात कराना चाहेंगे। कैसा लगा आपको? प्रधानमंत्री ने आपकी बात सुनी और आपसे पूछा कि क्या आपको कोई दिक्कतें आई हैं और क्या आप सरकार की कोई अन्य योजना का भी लाभ ले रहे हैं? बहुत बढ़िया, प्रधानमंत्री से बात करने के लिए बहुत बढ़िया आनंद हुआ हमको। और प्रधानमंत्री जी अन्य योजना जो चल रही है इसमें हमको हर तरह से लाभ मिलता है। जब से शुरू हुई है तब से हमको लाभ मिलता है। दुकानदार भी अच्छा होता है, इसीलिए वो फ़ोन करता है हमें और बहुत मोबाइल किया फ़ोन करके हमको बताता है कि भाई तुम्हारा अनाज जत्था आ गया है तो तुम ले जाओ, और हम यहाँ जाके बिंदास ले जाते हैं। जी देखिए रितु, आपको बता दूं तकरीबन 50 से 55 दुकानें हैं यहाँ पर, जो फेयर प्राइस शॉप्स जिन्हें बोलते हैं वो दुकानें हैं जहाँ से ये जो राशन है वो मिल जाता है। 23,000 के तकरीबन फैमिलीज़ हैं वडनगर के इलाके में, 23,000 के तकरीबन फैमिलीज़ हैं और 1 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। अभी यहाँ पर भी जो वितरण का कार्यक्रम है वो चल रहा था और यहाँ पर और भी अन्य लाभार्थी हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की, उसके अलावा भी जो लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम आप बताइए, आप कब से इस योजना का लाभ ले रही हैं? जब से शुरू हुआ तब से ले रही हूँ। और क्या फायदा हो रहा है इससे आपको? इससे फायदा मेरे घर में अच्छी तरह से फ़ायदा हो रहा है। मेरे घर का काम सरल होता है और मेरी ज़रूरियात पूरी होती है। तो कोरोना काल में जिस तरीके से कई ऐसे लोग थे जिनकी जो आवश्यकताएं हैं वो चूंकि काम कम था और जितनी मुश्किलों से लोग गुजर रहे थे, ऐसे में खाने पीने की परेशानी ना हो, इसके लिए ये अन्य योजना काफ़ी लोगों को यहाँ पर लाभदायक साबित हुई है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप अन्न पुरवठा मिलता है, वो आपको लाभ लेता है, हर महीने ये मिलता है और लेता है।
अच्छा, आप जाते हैं वहाँ पे और आपको आसानी से मिल जाता है, और आपके आसपास के इलाके के जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, क्या वो भी जाते हैं लेने के लिए? आसानी लाभ मिलता है, हर दुकानदार अच्छा है, और फ़ोन करके बोला कि और हर महीने एक बार मिलता है फ्री में अनाज। अच्छा, और आप जब से योजना शुरू हुई है तब से ले रहे हैं या आपको अभी पता चला? तब से जब से न लेते हैं। आपको कैसे पता चला इस योजना के बारे में? हाँ? कैसे पता चला इस योजना के बारे में? ये अनाज फ्री मिलता है, ये आप सही सलाह मिल जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखिए ऋतु, जो लोगों को यहाँ राशन मुहैया कराया जा रहा है, उसके अलावा ऐसे जो कार्यक्रम हैं इससे अवेयरनेस भी जनरेट होती है लोगों के अंदर कि कौन सी और योजनाएं भी जो हैं सरकार की, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की, जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं। और कोरोना काल के दौरान जिस तरीके की योजनाएं चलाई गई हैं, अगर वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में भी जो योजनाएं हैं, या आज प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार की जो दिव्यांगों के लिए जो योजना है, क्या कोई दिव्यांग व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से ये इंट्रोस्पेक्शन एक जो होता है वो जो सरकारी महकमे हैं उसको भी एक तरीके का अलर्ट हमेशा भेजता है कि किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जनहित तक, जन जन तक पहुंचाने की किस तरीके से कोशिश करते रहनी चाहिए। जी मेघना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी मेघना, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को सम्मान के साथ सशक्त करना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ ये सुनिश्चित किया गया कि पारदर्शिता आए, साथ ही साथ इन तमाम योजनाओं का लाभ उठाने में जो बिचौलिए शामिल थे उन बिचौलियों को खत्म किया जाए। क्या जब प्रधानमंत्री सम्मान से सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या उस तरफ प्रधानमंत्री का इशारा ये लगता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब हम कहते हैं टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है उसने चीज़ों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है। जिस तरीके से ओलंपिक्स के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, खिलाड़ियों के बीच आत्मविश्वास तब बढ़ता है। उसी तरीके से हर योजना की अगर हम बात करें, केवल खेल के क्षेत्र की नहीं, अन्य योजनाओं की भी बात करें, जब जिस आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जब जो आप अगर कोई योजना का लाभ लेने जा रहे हैं उस समय किसी बिचौलिए का इंटरवेंशन ना हो, उस समय किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरवेंशन ना हो जो आपको फैसिलिटेट कराने के लिए या बीच में बाधा के रूप में जो कोई व्यक्ति आए। तो ऐसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने कहा, अभी यहाँ पर भी जो लोग बता रहे थे कि केवल आधार कार्ड दिखाकर, राशन कार्ड दिखाकर और या केवल मोबाइल पर एक OTP आता है जिससे कि लोग ये आसानी से ले सकते हैं। जो पंडित दीनदयाल जो ग्राम भंडार हैं वहाँ पर जाकर भी लोग जो राशन है वो ले सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, इन सब तरह की चीज़ों से जो बिचौलियों का जो काम है वो बेशक ठप पड़ चुका है। और इसके कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, अगर अन्य योजनाओं की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट DBT के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से डायरेक्ट जो लाभार्थी है उस तक राशि पहुंचे, ये चीज़ को सुनिश्चित किया गया है। और इसी से जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं सम्मान से सशक्तिकरण, अगर हम आवास योजना की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, मुद्रा योजना की बात करें, तो ऐसे कई योजनाएं हैं। जो आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो हर क्षेत्र में, अगर वो घर की ज़रूरत हो, स्वास्थ्य की ज़रूरत हो, एजुकेशन की ज़रूरत हो, या एक व्यापार करने के लिए जो एक फंड चाहिए उसकी ज़रूरत हो, ऐसी सभी ज़रूरतों से जब सम्मान बढ़ता है तो आदमी सशक्त होता है। तो ये इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने काफ़ी जोर डाला। और आज का जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा और जो इंटरेक्शन रहा वो काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव भी था, और उसके साथ ही जो उसके साथ ही जो अन्य योजनाएं हैं उसको भी संबोधन में प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया। ना केवल अन्य योजनाओं को, बल्कि उसके साथ जो भी सरकार की जो प्रोग्राम्स हैं या गुजरात सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनको हाईलाइट किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं वो उस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और जो भी सरकारी ऑफिसर्स हों या एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हों उनसे इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सकें और सही तरीके से लाभ उठा सकें। तो बेशक बहुत ही अहम संबोधन रहा प्रधानमंत्री का आज। जी मेघना, आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। हम उससे पहले ये भी देख लें कि गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभान्वित हुए लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। कोरोना काल में ये योजना लाभार्थियों के लिए काफी सहायक साबित हो रही है। बहुत बढ़िया फायदा हुआ सर। मोदी साहब का जो ये कोरोना काल में जो हमको मिला है ना, जो नहीं धंधा पे नहीं जाते, नहीं कहाँ बाहर निकलते, तो हम बहुत मुसीबत में पड़ गए थे सर, बहुत मुसीबत में पड़ गया था। अच्छा हुआ मोदी साहब ने जो ये महामारी में ये अनाज और वो प्रधानमंत्री का वो 2-2 हज़ार रुपया
किसान का डाला वो, और ये सस्ता और वो फ्री में जो अनाज मिला तो ये खा के ये महामारी का काल निकाला। कोरोना महामारी थे उस समय में नरेंद्र मोदी साहब ने ये योजना डाली, ये योजना से हमारे परिवार अच्छी तरह से खा सके और उसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं हुई। सरकारी दुकान भी हमारे नज़दीक थी और टाइम सर मिल गया और उससे हमारा घर अच्छी तरह से चला। मुझे इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, तो हर महीने मुझे राशन मिलता है। मैं निवृत्त हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ और इसके वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। कोरोना काल में वो गरीब अन्न योजना वो प्रधानमंत्री ने निकाली है, इससे हमारा घर का जो कोरोना काल में कुछ धंधा रोजगार नहीं मिल रहा था, तब हमको वो गेहूँ और चावल मिला तो हमारे घर का वो गुजरान अच्छी तरह से चल रहा है और अभी भी वो ऐसी ही योजना वो चालू ही रखे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ हमने बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले NSF कार्ड से अनाज नहीं मिल रहा था, कोरोना काल में से ये अनाज मुफ्त से मिल रहा है, इसलिए मेरे परिवार को सब घर संसार चल रहा है। पहले ये योजना नहीं था, इसलिए हम मजदूरी करने के जाना पड़ता था एक गांव से दूसरे गांव, इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेघना, इस कोरोना महामारी के काल में पहले लॉकडाउन से लेकर अभी तक प्रवासी मजदूर, प्रवासी कामगारों पर सबसे बड़ा संकट था घर वापसी के बाद, घर वापस लौटने के बाद अनाज की कमी, अनाज घर पे रहे। इसको सरकार ने पूरा किया है और 2021 नवंबर तक ये योजना अभी जारी है। ऐसे में क्या लगता है आज का संवाद प्रधानमंत्री का क्या और लोगों को भी इसमें अब जोड़ेगा? लोगों को ये जानकारी होगी कि ये उनको ये सुविधा दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने की जब बात होती है किसी भी योजना के लिए, ये सबसे ज़्यादा अहम बात होती है। इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस तो होते ही हैं, उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है अवेयरनेस हो, योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचे। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब चिंता मुक्त तब होता है जब उसके पास खाना होता है, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरीके से इस अन्न योजना की तारीफ हो रही है, विश्व भर में इस अन्न योजना की तारीफ हो रही है, चूंकि एक बहुत ही बड़ा तबका है, तकरीबन 80 करोड़ लोग हैं जो इसमें लाभार्थी हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो जरूरत के अनुसार इसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। इसकी जो योजना का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जा रहा है, और अभी अगर देखा जाए तो तकरीबन बहुत 5 महीनों के लिए इसको बढ़ाया गया है, जुलाई से लेकर नवंबर तक के लिए। उससे पहले भी इसे बढ़ाया गया था और लॉकडाउन के समय से लेकर अभी तक इसे बार बार बढ़ाया जा रहा है जरूरत के अनुसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसे जुलाई से नवंबर तक के लिए बढ़ाने की बात कही थी, तब उन्होंने यह भी कहा था कि फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, जन्माष्टमी कहें, दीपावली कहें या छठ पूजा कहें, ऐसी परिस्थिति में जो एक्सपेंडिचर होता है हर घर का वो थोड़ा बढ़ जाता है, और ऐसे में जब अनाज घर घर तक पहुंचेगा तो बेशक लोगों की मदद हो सकेगी, थोड़ी ही सही लेकिन उनकी मदद हो सकेगी। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बात की, लोगों से पूछा कि वो क्या करते हैं, कुछ लोग छुटक मजदूरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सैलून चलाते हैं, कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलचस्पी लेकर यह भी पूछा कि आप जब जो खेती करते हैं उसमें क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं तो क्या करते हैं, भैंस के दूध हो या गाय के दूध हो उसका क्या मूल्य मिलता है। तो ये सब तरीके की जो जानकारी है वो ये बताती है कि कितना वो हर क्षेत्र में जानना चाहते हैं, और चूंकि गुजरात उनका होम टर्फ रहा है और वो हर इलाके को बखूबी जानते हैं। अगर तापी की बात करें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, उधर से लेकर बनासकांठा तक के जो भी इलाके हैं वहाँ पशुपालन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है पेशा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सभी चीज़ों की जानकारी है, जिसके कारण वो जो बातचीत है लोगों से, आम जनमानस से वो जुड़ पाते हैं।
ऐसी परिस्थिति में हम जब अवेयरनेस की बातें कर रहे थे तो ऐसे ही जो बातचीत और जो पेशा एक दूसरे का पेशा जानकर और किस तरीके से बात को आगे बढ़ाकर क्या उनके बाल बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, क्या कोई सैलून का अगर पेशा कर रहा है तो कोरोना काल में उसे किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इन सभी चीज़ों में जब बातचीत होती है तो लोगों को पीपल टू पीपल कनेक्ट जो एक एस्टैब्लिश होता है, उससे जो योजनाएं होती हैं उसमें एक ह्यूमन टच मिलता है। बिल्कुल तो मेघना, ये भारत बेशक जैसी आज विशाल का एक जनसंख्या तरीके से वाले देश में इस योजना का 80 करोड़ देशवासियों तक पहुंचना ये बताता है कि किस तरह से क्रियान्वयन को लेकर भारत में लगातार काम किया गया है और उसका असर दिखाई दिया है कि इतनी बड़ी संख्या 80 करोड़ देशवासियों को इस योजना का आज की तारीख में लाभ मिल रहा है, जो बहुत बड़ी मदद इन परिवारों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इस पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ओए, ये कोरोना कब जाएगा? क्या पता, डिग्री मिलेगी क्या पता, नौकरी मिलेगी क्या पता, बड़े बड़े शहरों में करनी थी पढ़ाई, सपने सारे हो गए हैं लापता। ओ मेरे टॉपर्स, बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। upgrad.com। और मिड डे प्राइम में आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और ओलंपिक के उलटफेर को लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं सुचित्रा जी। सुचित्रा, क्या खबरें आज? शुक्रिया रितु। शुरुआत करते हैं हॉकी से जुड़ी खबर के साथ। बेल्जियम ने भारत को हराकर टोक्यो ओलंपिक के पुरुष हॉकी के फाइनल में स्थान बना लिया है। पहले सेमीफाइनल में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पहले 3 क्वार्टर्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से बढ़त बना रखी थी। हालांकि चौथे क्वार्टर में बेल्जियम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 3 गोल करके मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस हार के बावजूद भारत के पास अब भी कांस्य पदक जीतने का मौका है। भारतीय टीम अब तीसरे स्थान के मुकाबले में खेलेगी। मंगलवार की सुबह देश भर के खेल प्रेमियों की नजरें टोक्यो ओलंपिक पर लगी हुई थी, जहां भारतीय पुरुष हॉकी टीम 41 साल के लंबे अंतराल के बाद पदक पक्का करने के इरादे से मैदान पर थी। शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया के सामने थी विश्व की नंबर 2 और विश्व चैंपियन बेल्जियम की टीम। मैन एंड ब्लू का जलवा देखने के लिए सब बेकरार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुकाबले को देख रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके टीम इंडिया को शुभकामनाएं भी दी। सेमीफाइनल में गोल की शुरुआत पहले क्वार्टर से ही हो गई। दूसरे मिनट में ही बेल्जियम ने गोल करके 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की। 7वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत को बराबरी पर ला दिया। बेल्जियम की टीम अभी इससे संभली भी नहीं थी कि अगले ही मिनट में मनदीप सिंह ने बैकहैंड पर शानदार शॉट लगाते हुए गोल करके भारत को 2-1 से आगे कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भी कांटे की टक्कर देखने को मिली। 12वें मिनट में बेल्जियम को 5वां पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर गोल करके अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने मुकाबले को 2-2 से बराबरी पर ला दिया। तीसरे क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। अंतिम क्वार्टर में हेंड्रिक्स ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए बेल्जियम को जीत दिला दी। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का 1980 के बाद पहला स्वर्ण पदक जीतने का सपना भी टूट गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की निराशा को दूर करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हार जीत जीवन का हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक में हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इस मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की और उन्हें आगे के मैच के लिए शुभकामनाएं दी। Today he spoke to the captain and the coach of the men's hockey team to give them confidence to face the playoff for the bronze medal. वहीं केंद्रीय खेल मंत्री ने हॉकी टीम के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए ट्वीट किया, लड़कों आपने बहुत अच्छा खेला, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, हम आपके साथ हैं, हमारे पास अभी एक और मुकाबला है,
हम टीम इंडिया हैं और हम कभी हार नहीं मानते। इस हार के बावजूद भारत के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। भारतीय टीम अब तीसरे स्थान के लिए मुकाबला करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय महिला पहलवान सोनम मलिक 62 किलो भार वर्ग में अपना पहला मुकाबला मंगोलिया की एशियाई रजत पदक विजेता बोलोरतुया खुरेलखुव के खिलाफ हार गई। और अब कल के बड़े मुकाबले की बात, भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन बुधवार को अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। लवलीना ने अपने पिछले दोनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। अब सेमीफाइनल में उनके सामने तुर्की की बुसेनाज सुरेमेनेली हैं, जिनका हालिया फॉर्म काफी अच्छा रहा है। अपने धाकड़ पंच से पदक की तस्वीर को पक्का रूप देने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन अब सेमीफाइनल में अपने पंच की धमक से विरोधी को धराशायी करने के लिए तैयार हैं। लवलीना का सेमीफाइनल में सामना तुर्की की बुसेनाज सुरेमेनेली से है, जहां हर मुक्का जीत की कहानी को लिखने के लिए बेताब रहेगा। लवलीना ने 69 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को 4-1 से शिकस्त दी। इससे पहले उन्होंने जर्मनी की नैडिन एपेट्स को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। लवलीना अपने खेल में अटैकिंग के साथ साथ डिफेंसिव मोड पर भी खुद को आगे रखती हैं और पिछले मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां 2 राउंड में बढ़त लेने के बाद उन्होंने डिफेंसिव मोड पर भी खुद को संभाले रखा। वैसे लवलीना और सुरेमेनेली पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगी। सुरेमेनेली की बात करें तो इस मुक्केबाज ने यूक्रेन की मुक्केबाज एना लेसेंको को 5-0 से मात दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तुर्की की इस बॉक्सर ने अब तक 21 मैच खेले हैं, जिसमें से केवल 5 में ही उन्हें हार मिली है। वैसे लवलीना 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन को हराया है। लेकिन फिर भी अब सेमीफाइनल की जंग में जीत उसी के साथ आएगी, जो न केवल रिंग में मुक्कों की बरसात में आगे होगा, बल्कि मानसिक मजबूती के फ्रंट पर भी बाजी मारेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। ओए, ये कोरोना कब जाएगा? क्या पता, डिग्री मिलेगी क्या पता, नौकरी मिलेगी क्या पता, बड़े बड़े शहरों में करनी थी पढ़ाई, सपने सारे हो गए हैं लापता। ओ मेरे टॉपर्स, बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। upgrad.com। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और मिड डे प्राइम में अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत। जी हां, आपने सही सुना। 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार किया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आइए देखते हैं कश्मीर के एक गांव का नजारा कि ये बदलाव किस तरह इलाके की तस्वीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर स्पेशल एक्ट के निष्प्रभावी होने के 2 साल पूरा होने के मौके पर डीडी न्यूज की टीम कश्मीर की बदली फिजा को समझने मागाम के गोम गांव पहुंची। वादी के इस पिछड़े गांव में लोगों ने बताया कि अब वे व्यवस्था में तेजी से बदलाव देख रहे हैं। अब सरकारी कामों के लिए उन्हें यहाँ से वहाँ के चक्कर काटने नहीं पड़ते। हमारी समस्या गांव में हल हो रही है। बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। 70 साल से जो विकास में रुकावटें आ रही थी, पिछले 2 साल में वो काफी दूर हुई हैं। यहाँ की तस्वीर अब बदल रही है।
जो यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए, पंचायतों के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है और पंचायत ही यूटिलाइज करता है। काफ़ी बड़ा फ़र्क आ गया है और डेवलपमेंट के लिहाज से अब लोग इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल आज़ाद है, उनका जहन खुल गया है और वो जहन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जितने भी यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करने के बाद हर मामले में अपना खुद असर रसूख कायम करके उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और काम करते हैं। इस बदलती तस्वीर की वजह प्रशासन की मुस्तैदी तो है ही, साथ ही शासन प्रशासन में इनकी बड़ी भूमिका और ग्राम सभा को सीधे मिले अधिकार है। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, पारदर्शिता आ रही है। सच मायने में ये पीपल्स गवर्नेंस का दौर है। पंचायत बनी, सरपंच साहब बने, पंच साहब बने, बहुत यहाँ पर ये हो गया काम गाँवों का। हाँ, सड़कें बनी, कोचे बने और वो आरसीसी वो पाद बने। अगर किसी जगह ये कुछ नहीं हुआ है हम शिकायत करते हैं, वहाँ कुछ नहीं हुआ है काम करते हैं। युवाओं में भविष्य को लेकर नई उम्मीदें हैं। इन्हें शिक्षण प्रशिक्षण के नए मौके मिल रहे हैं। खेल से लेकर नए व्यवसाय खड़ा करने तक सरकारी मदद ने इनकी उम्मीदों को एक नई उड़ान दी है। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह क्रांतिकारी दौर साबित हुआ है। हमारा जो है काम चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरे अच्छे तरीके से अपना हक मिल रहा है। गेम्स में हम हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, ना कोई अलाउ करता था। आज तो हम गेम्स भी खेलते हैं, कहीं भी जाके एडमिशन करते हैं तो कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं होता था। आज तो माशाल्लाह सब कुछ प्रोवाइड होता है। इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में 370 के हटाए जाने के बाद लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं, उसे नई ऊर्जा मिली है। त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होने के बाद आवामी नुमाइंदों को सत्ता में भागीदारी का ज्यादा मौका मिला है। पहली बार ग्राम सभा अपने इलाके में विकास योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र है। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के पास विकास के लिए अपना बजट है। पहली बार ग्राम सभा विकास की योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र है। बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रमों से गवर्नेंस में सामाजिक भागीदारी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र में निवेश पर जोर दिया गया है। गांवों में रोजगार सृजन की व्यवस्था में तेजी आई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ, 2 सालों में वो काम अब होने लगे हैं। आम आवाम की भागीदारी न केवल शासन प्रशासन में बढ़ी है, बल्कि सत्ता में जो कि एक सपना लगता था वो अब साकार होने लगा है। ये कहते हैं कि इन्हें सही मायनों में आज़ादी अभी मिली है। कैमरामैन संदीप और सहयोगी MM शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, गोमगांव। और मिड डे प्राइम में आज इतना ही। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। For India to develop, there should be 3 types of connectivity. One is physical connectivity, first one, physical connectivity through quality roads and bridges. Second is electronic connectivity. Third one is knowledge connectivity. If these connectivity are fulfilled, our villages will develop. So first, it is physical connectivity. After doing the physical connectivity, the development starts. The villages get empowered, and these bridges, any bridge, it will connect them to the world of opportunities. I am Girish Bharadwaj. You can watch me in conversation with DD India. टोक्यो में देश की बेटियों का हौसला बिंदास। हर हिंदुस्तानी को है इन पर नाज। जज्बा जुनून है जिनकी ताकत पूरा करती है मेडल की चाहत। देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिलाओं की अभूतपूर्व उपलब्धि पर हमारी विशेष पेशकश। बेटियों ने बढ़ाई शान। आज शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर।